on the first evening of our convention. हमारे सम्मेलन की पहली शाम को हम सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के आशीषित नाम से आपको अभिनंदन करते हैं. We are blessed people that by the grace of God we are all gathered this evening into His holy presence. हम धन्य लोग हैं क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज शाम के वक्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. And whenever His people gather together into His presence, God's presence, God comes among them to bless them. और जब कभी परमेश्वर के लोग उसकी हजूरी में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए उनके बीच में आता है. And according to His promise, our God is among us to bless us tonight. और परमेश्वर अपनी वायदे के अनुसार आज शाम को हमें आशीष देने के लिए हमारे बीच में है. God should speak to us tonight through His holy word. Once again, let's all praise God. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आज शाम के वक्त हमसे बातें करने के लिए हम मिलकर तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's turn to the Gospel of St. Luke, chapter 19. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय And let's read first 6 verses. और पहले 6 वचन पढ़ेंगे. Gospel of St. Luke, chapter 19, verses 1 to 6. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का पहले 6 वचन. वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था. वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था. तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है. वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया. And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was a chief among the publicans, and he was rich, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. In this scripture portion, we have read about Zacchaeus and Lord Jesus Christ. इस शास्त्र के भाग में हम जक्कई और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं. And from these verses, we will see how this Zacchaeus got salvation. और इन वचनों से हम जान लेंगे कि ये जक्कई कैसे उद्धार पाया. Salvation is the need of the human being. उद्धार मानव जाति का जरूरत है. Without salvation, no man can go to heaven, says the word of God. उद्धार के बिना कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा करके शास्त्र कहती है. Because everyone, those who lives upon this earth, they believe that there is a heaven and there is a hell. क्योंकि आप संसार में जीवन बिताने वाला हर एक व्यक्ति या तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा. And they know also that one who do sins, he will go to hell only, and one who follow on God's side, he will go to heaven. और वे जानते हैं कि पाप करने वाले नरक जाएंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे. So today, if you are not saved, tonight you have to decide yourself. इसलिए आज रात के वक्त अगर आप उद्धार नहीं पाया है तो आप एक फैसला लेना चाहिए. Because time is no more before us. क्योंकि हमारे सामने और समय नहीं रहा. Any time we may get the home call and we have to leave this world. कभी भी हमें स्वर्ग की ओर बुलाया जाएगा या हमें संसार छोड़ना पड़ेगा. That's why before we get our home call, we must be sure whether we are saved or not. इसलिए मृत्यु आने के पहले हमें ये निश्चित होना चाहिए कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं. So tonight you are going to hear how one can receive the salvation. इसलिए आज रात के वक्त हम ये सुनने वाले हैं कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. First of all, we shall see from the scripture which we have read in front of you what Zacchaeus did in order to receive the salvation. पहले हम शास्त्र के भाग से ये देखेंगे कि जक्कई उद्धार पाने के लिए क्या किया. Because this is the first thing which unsaved people have to do. क्योंकि उद्धार नहीं पाए हुए लोग भी यही काम पहले करना चाहिए. What Zacchaeus did, those who did not
get the salvation and seated over here, you have to do that things which Zacchaeus did. जिस प्रकार जक्कई ने किया उसी प्रकार यहाँ पर बैठे हुए लोग जो उतार नहीं पाए हुए हैं, आप भी इसी काम को करना चाहिए। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। First of all, we see here and we have read about Zacchaeus that he wanted to see Jesus who he was. पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई देखना चाहता था कि यीशु कौन है। So from this we can understand the desire of Zacchaeus. इससे हमें जक्कई का आग्रह पता चलता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear ones, if you want to be saved, first of all, you must have desire to be saved. प्रिय लोगों, अगर आप उद्धार पाना है तो पहले आपको उद्धार पाने के लिए एक आग्रह होना For चाहिए। example, उदाहरण के लिए, if you want to put your son into the good school, in the good school, अगर आप अपने बेटे को एक अच्छे विद्यालय में दाखिल करना चाहते first हैं, of all, desire will come into your heart. पहले आपके मन में एक आग्रह आएगा And according to your desire, you will find the good school. और आपके आग्रह के अनुसार आप एक अच्छे विद्यालय का तलाश करेंगे। And when you will find the good school, you will take your child there to admit him there. जब आपको एक अच्छे विद्यालय मिलेगा तो आप अपने बेटे को वहां ले जाकर उनको दाखिल In करेंगे। the same way, dear ones, to get the salvation also, first of all, we must have desire. वैसे प्यारे लोगों, हमें उद्धार पाने के लिए पहले एक आग्रह होना चाहिए। Here we see the desire of Zacchaeus. यहाँ पर हम जक्कई के आग्रह के बारे में देखते हैं। What was his desire? उसका आग्रह क्या था? He wanted to see Jesus who he was. वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है। In this meeting, you are also going to hear who Jesus is. आज इस सभा में आप ये सुनने वाले हैं कि यीशु कौन है। When we go through the Word of God, in the Scripture, we can see who Jesus was or who he is. जब हम शास्त्र में से पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यीशु कौन था या फिर यीशु कौन है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jesus Christ is the Savior. यीशु मसीह उद्धार करता है। Jesus Christ is the Savior of the whole human being. यीशु मसीह सारी मानव जाति का उद्धार करता है। Bible says all committed sin and come short from the glory of God. शास्त्र कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। No one is righteous upon this earth. इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। All committed sin and come short from the glory of God. सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। First man who was created by God, he was filled with covered with the glory of God. पहले मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से सृजा गया वह परमेश्वर की महिमा से ढापा हुआ But था। the moment he committed sin, disobeyed the commandment of God, that glory was departed from him. लेकिन जब उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो महिमा उसे छोड़कर चले गया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। That's why the word of God says, all committed sin and come short from the glory of God. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Because the first man, Adam, he did sin, and we are the descendants of that fallen Adam. क्योंकि पहला व्यक्ति आदम पाप किया और हम उनके वंश में हैं। That's why we are also known as a sinner if we do not accept Lord Jesus Christ as our personal Savior. इसलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा निजी उद्धारक होकर ग्रहण नहीं करते हैं तो हम भी पापी कहलाए जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But God so loved the world that he gave his only begotten Son, Lord Jesus Christ, so that whosoever believeth upon him should not perish but have everlasting life. लेकिन परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपने इकलौता बेटा जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। Who is Jesus? यीशु कौन है? Jesus is our Savior. यीशु हमारा उद्धार करता है। Savior means one who saves us from sins. उद्धार करता कहने से हमें पापों से बचाने वाला। That's why Lord Jesus Christ came into this world more than 2000 years ago, and he lived upon this earth, and finally he died on the cross of Calvary for the sins of the whole human being, and he died there, and he was buried, and on the third day he was risen again. इसलिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और वो लोगों के पापों के लिए कलवरी की सलीब पर मर गया। उसके बाद वो दफनाया गया और तीसरा दिन वो जी उठा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Christ is not only a Savior. He is not only a वो Savior. केवल उद्धार करता ही He नहीं, is our burden bearer also. वो हमारे बोझों को उठाने वाला भी है। Jesus Christ is our burden bearer also. यीशु मसीह हमारे बोझों को उठाने वाला है। That's why Lord Jesus Christ said, Matthew chapter 11 and verse 28,
इसलिए मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय के 28 वचन में यीशु कहता है, Jesus said, "Come unto me, all ye labor and heavy laden, I will give you rest." यीशु ने कहा, इस परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And Matthew chapter 1 and verse 21, there it is written about our Lord Jesus Christ that He is the Savior. मत्ती पहला अध्याय के 21 वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारा उद्धार करता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So dear brother and sister, perhaps some of you who are seated over here may be troubled with the burdens of your life. इसलिए प्यारे भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, आप में से कुछ लोग कई बोझों से व्याकुल होंगे। But tonight there is a deliverance for you from all your burdens. लेकिन आज रात के वक्त आपको सारे बोझों से एक छुटकारा है। Burden of sin, पाप के बोझ, burden about your worries and cares and needs, आपकी जरूरतों के बारे में जो फिक्र है उसी का बोझ, family burden, आपकी पारिवारिक बोझ, burden of sicknesses, आपकी बीमारी का बोझ, burden of your even the job if you don't have, आपको नौकरी नहीं है तो उसके बारे में जो बोझ है, burden about your old life, आपकी बुजुर्ग अवस्था के बारे में जो बोझ है, whatever it may be. चाहे कुछ भी हो, Jesus Christ is willing to bear all types of our burdens. यीशु मसीह हमारे सारे बोझों को उठाने के लिए तैयार है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। That's why what you have to do, इसलिए हमें क्या करना है? you must bring all your burden and keep at the foot of Lord Jesus Christ. आप अपने सारे बोझ ले आकर यीशु मसीह के पैरों तले रखना है। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। He's not only our burden bearers, वो केवल हमारा बोझ उठाने वाला ही नहीं, He is the light of this whole world. वो जगत का रोशनी है। When we read John the Gospel, chapter 8 and verse 12, it is written there, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय का 12 वचन में ऐसे लिखा है, Jesus said, "I am the light of this world." यीशु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। Just I am telling you who Jesus is. या ये बता रहे हैं कि यीशु कौन है। First I told you Christ is the Savior, पहले मैंने बताया कि यीशु उद्धार करता है, and He's our burden bearer, वो हमारा बोझ उठाने वाला है, and He is also the light. वो ज्योति भी है। Read that verse, please. वचन पढ़िए। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here we have read about our Lord Jesus Christ, that He is the light. यहाँ पर हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़े हैं कि वो ज्योति है। Light can only dispel the darkness. केवल ज्योति अंधकार को दूर कर सकती Let है। it be any kind of darkness in your life. चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार हो, Darkness called sin. पाप का अंधकार, Darkness called problems of your life. आपके जीवन की समस्या जो अंधकार है, Darkness called sickness too. आपकी बीमारी जो अंधकार है, Darkness called the problems of your life. आपके जीवन की समस्या जो अंधकार कहलाए जाते Whatever हैं, it may be. चाहे कुछ भी हो, This Jesus who is the light, when He will come into your life, He will remove all darkness from your life. ये यीशु जो ज्योति है, जो वो आपके जीवन में प्रवेश करता है, तब वो आपके सारे अंधकार को दूर करेगा। That's why He said, one who will follow me, he will not walk in darkness, rather he will have the light of life. इसलिए कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Do you want this light? क्या आप इस ज्योति का आग्रह करते हो? Or you want to be continued in your darkness? या फिर आप अंधकार में रहना चाहते हो? Tonight, if you want to come out from your darkness, whatever it may be, come to this light, who is Jesus. आज रात के वक्त आपके चाहे कौन से भी अंधकार हो, उससे दूर आना चाहते हो तो आप यीशु जो ज्योति कहलाया जाता है उसके पास आइए। Not only Jesus is a light. यीशु ज्योति केवल नहीं, When we go further, we see Jesus Christ is our healer also. आगे बढ़ते वक्त हम देखते हैं कि वो हमारा चंगाई करने वाला All है। these things I am telling about Jesus, who he is, ये सब बातें मैं ये बता रहा हूँ कि यीशु कौन है, so that you may understand what Jesus is and what He can do for you. ताकि आप समझ सके कि यीशु कौन है और वो आपके लिए क्या कर सकता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When we read 1 Peter chapter 2 and verse 24, जब पहले पत्रस 2 अध्याय को 24 वचन पढ़ते there हैं, it is written, by His stripes we are healed.
वहाँ पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते That हैं। means Lord Jesus Christ is our healer also. इसका मतलब ये कि यीशु हमारा चंगाई करने वाला भी Today है। we see incurable sicknesses are prevailing in this world. आज हम देखते हैं कि कई लाइलाज बीमारी संसार में दिखाई देते But हैं, of Lord Jesus Christ, He can heal you whatever your sicknesses may be. लेकिन चाहे आपकी बीमारी क्यों कुछ ना हो, यीशु आपको सारी बीमारी से चंगाई कर सकता है। Provided you must fully surrender to that Jesus and do His will. इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह से यीशु के लिए समर्पण करके उसकी मर्जी कीजिए। When you will fully surrender, even if you are sick also, and decide to do what Jesus says, dear ones, you will be healed, whatever your sicknesses may be. आप बीमार होते हुए अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करके यीशु की इच्छा करने से वो आपको सारी बीमारी से छुड़ाएगा। Tonight there is a healing for you if you will believe believe on Lord Jesus Christ. आज रात के वक्त आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके लिए चंगाई है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। When we go further, we see about our Lord Jesus Christ is the Prince of Peace. आगे बढ़ते वक्त हम देखते हैं कि हमारे यीशु शांति का राजकुमार है। Jesus Christ is the Prince of Peace. हमारा प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। Today we are living in the peaceless world. आज हम शांति रहित संसार में जीवन In बिताते the हैं। world there is no peace. यह संसार में कोई शांति नहीं No है। peace in the families. परिवारों में शांति नहीं No है, peace in the society. समाज में शांति नहीं है। No peace even in the office where people are working together. लोग काम करने वाले दफ्तरों में भी शांति नहीं है। Everywhere peaceless state we can see. हर एक जगह में एक शांति रहित अवस्था को देखते हैं। Why? What is the reason behind that? क्यों? उसका कारण क्या है? Reason is only one. उसका केवल एक ही कारण है, That is sin. वो पाप है। The man gone away from God. That's why man's state become peaceless state. जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाती है तब उसका अवस्था एक शांति रहित अवस्था हो But जाता है। when this fallen man who has gone far from God, when he will come back to God, God, who is a Prince of Peace, He will come into his heart and fill him with peace, which this world cannot give to him. लेकिन ये गिरा हुआ व्यक्ति जब वापस लौटकर यीशु के पास आता है तो वो यीशु उसे ऐसी शांति दे सकता है जो इस जग नहीं दे सकता। About Jesus it is told He is the Prince of Peace. यीशु के बारे में कहा गया कि वो शांति का Dear राजकुमार one, है। do you want this peace who Jesus gives to you? ये प्यारे लोगों, क्या आप यीशु देने वाली शांति चाहते हो? If you want this peace, come to this Jesus tonight. अगर आप ये शांति चाहते हो तो आज रात यीशु के पास आ There will be जाइए। peace in your family, there will be peace in your office, there will be peace wherever you are living. तभी आपके परिवार में, आपके दफ्तर में, जहाँ कहीं आप रहते हो वहाँ पर शांति होगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Not only that, उतना ही नहीं, Jesus is our comforter. यीशु हमें तसल्ली देने वाला है। That's why John the Gospel chapter 14 and verse 1 and 2 Jesus said, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय के पहले 2 वचनों में यीशु ऐसा कहता what है। Jesus said, यीशु ने क्या कहा? let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना You हो। believe in God, believe in me also. तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Are you having a troubled heart? क्या आपका एक व्याकुल मन है? Are you seated in this place with troubled heart? आप में से यहाँ पर जो बैठे हैं, आप में से कितने लोगों को ऐसे व्याकुल मन है? Dear ones, come to this Jesus who can fill you with His comfort. प्यारे लोगों, आप यीशु के पास आ जाइए जो आपको अपनी तसल्ली से भरेगा। On troubled heart, you have no need to go back with a troubled heart. आपको एक व्याकुल हृदय लेकर वापस लौटने की जरूरत नहीं है। Tonight, you can get the deliverance from your troubled heart if you will come to Jesus. आज रात के वक्त अगर आप यीशु के पास जाएं तो आपके व्याकुल मन से आपको छुटकारा मिलेगा। Jesus will stop all the storms and winds which are arising against your life to disturb you. आपके जीवन के विरुद्ध उठने वाली सारी लहर और सारी आंधी को यीशु थमाएगा ताकि वो आपके जीवन में व्याकुलता न लाए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Not only that, इतना ही नहीं, Jesus is eternal hope. यीशु हमारा नित्य आशा है। If you want to get hope in this world, अगर आपको संसार में आशा चाहिए, if you want to get hope after your death, अगर आपकी मृत्यु के पश्चात आपको एक आशा है, this Jesus only can give you. केवल यीशु आपको दे सकता He है। is the hope of glory in us. वो हमें महिमा की आशा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा He हो। is the eternal hope for the hopeless people.
जो आशा रहित लोग हैं उनके लिए वो एक नित्य आशा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। This is what Zacchaeus wanted to know about Jesus. और यही बात ज़क्कई यीशु के बारे में जानना He चाहता था। wanted to know who Jesus was. वो जानना चाहता था कि यीशु कौन He है। might have heard from other people about Jesus. वो दूसरों से शायद यीशु के बारे में सुना होगा, But now he personally wanted to know who Jesus was. लेकिन अब वो व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता है कि यीशु कौन है। Or is it true what I heard about Jesus, that is true or not? That also he wanted to know. और वो यह भी जानना चाहता था कि यीशु के बारे में जो मैंने सुना है वो सब सच है क्या। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा So हो। all these things, dear ones, what I have told you, when you will come to Jesus, you can experience in your lives. जो कुछ अभी आपको बताया गया है, जब आप यीशु के पास आ जाते हो तो आपके जीवन में ये सब कुछ अनुभव कर And for सकोगे। all these things, we see man is needed. और हम जानते हैं कि मनुष्यों को इन सब बातों का जरूरत है, But by money you cannot buy all these things. लेकिन पैसे देकर आप इन चीजों को खरीद नहीं सकते। Freely Christ wants to give you. लेकिन इसे मसीह मुफ्त से तुम्हें देना चाहता है। Freely tonight Christ wants to give you. आज रात के वक्त मुफ्त प्रभु इसे देना चाहता If है। he want to give you, he want to give you salvation. वो आपको उद्धार देना चाहता है। He is ready to bear your burdens. वो आपकी बोझों को उठाने के लिए He तैयार want to है। become a light of your life. वो आपके जीवन की ज्योति बनना चाहता He है। want to heal you from your sicknesses. वो आपको चंगाई देने के लिए चाहता है। He want to comfort you in your troubled heart. आपके व्याकुल मन में तसल्ली देना चाहता He है। want to give you fill His peace in your peaceless state. आपकी शांति रहित अवस्था में वो अपनी शांति तुम्हें देना चाहता And you है। may be without hope in this world. He wants to fill you with the eternal hope. शायद आप आशा रहित होंगी, लेकिन वो नित्य आशा से आपको भरना चाहता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Though Zacchaeus had this good desire in his heart, जक्कई को ये अच्छा आग्रह होने के बावजूद, but he had two hindrances before him. लेकिन उसके सामने दो रुकावट दिखाई दी। Before he could see Jesus, he had two hindrances before him. वो यीशु को देखने के पहले उसके जीवन में दो रुकावट दिखाई दी। What were these two hindrances? ये दो रुकावट क्या थे? Read Luke 19 chapter verse 3. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 3 वचन में पढ़िए। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। And he sought to see Jesus who he was and could not for the press because he was little of stature. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। In the third verse we have seen Zacchaeus, who wanted to see Jesus who he was, he had two hindrances before him. तीसरे वचन में हम देखते हैं कि जक्कई यीशु को देखना चाहा, लेकिन उसके सामने दो रुकावट दिखाई दी। First was the crowd. पहली वो भीड़ के कारण। Press mean crowd. यहाँ पर कहा गया वो भीड़ के कारण। We know from the word of God that while Christ was upon this earth, wherever Jesus went to do good to the people, crowd followed him. हम देखते हैं कि जहाँ कहीं यीशु इस जगत में गया और उसके पीछे लोग, भीड़ के भीड़ लोग उनके पीछे हो So लिए। here we see Zacchaeus also, he wanted to know Jesus, but he found that crowd was there, he could not see and approached to Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई यीशु को देखना चाहा, लेकिन भीड़ के कारण वो उसके समीप नहीं जा सका। And the second thing was, he was a pygmy. He was a very short-statured man. दूसरी बात यह कि वो एक बहुत नाटा इंसान था। What is the meaning of this crowd and short-statured man? ये भीड़ और ये नाटा मनुष्य, इसका अर्थ क्या है? This crowd speaks of the public opinion. Public opinion. ये भीड़ जो है सामाजिक निर्णय को दर्शाता है। Some people say the voice of the people is the voice of God. कई लोग कहते हैं कि लोगों की आवाज परमेश्वर की आवाज है। If the 100 people will say black is white, yes, everyone will believe yes, black is white. अगर 100 लोग ये कहेंगे कि काला रंग सफेद है, तो और भी लोग कहेंगे कि हाँ सही है, काला रंग सफेद ही है। Black is black only, but if the 100 people, majority will say black is white, every will say yes, it is white. काला रंग तो काला ही है, लेकिन अगर 100 लोग कहेंगे कि काला रंग सफेद है, तो और भी लोग कहेंगे कि If the काला one रंग person सफेद will है। say no, how you can say black is white? Black is black only. Why you say, how you can say that? But they say these majority people, 100 people are telling this black is white. If the single person is telling white, how can we believe him? लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है कि ये तो काला ही है, काला कैसे सफेद हो सकता है, तो वे कहेंगे कि 100 लोग कह रहे हैं कि सफेद है, तो अकेला कह रहा है कि काला है, तो ये सफेद ही होगा। Or these 100 people are fooled. Those are telling black is white.
जो 100 लोग कहते हैं कि ये सब काला रंग सफेद है, वे सब मूर्ख ही हैं। Brother and sister, what the word of God says? भाई बहन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Curse to them, woe to them, those who say black is white and the black is white and the white is black. उन लोगों को हाय जो कहते हैं कि काला रंग सफेद है और सफेद रंग काला है। What the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहता When we है? read the book of Isaiah chapter 55, जब हम यशायाह 55 अध्याय पढ़ते हैं, verses 8 and 9 when we read, उसका 8 और 9 वचन जब पढ़ते then हैं, God says, वहाँ पर परमेश्वर कहता है, your thoughts are not mine thoughts. तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। Your thoughts are not mine thoughts. तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। Your ways are not mine ways. तुम्हारी मार्ग मेरी मार्ग नहीं There है। is a vast difference in your thoughts and your ways and mine thoughts and mine ways. तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी मार्ग और मेरी मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर है। Read that verse, please. वचन पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा So हो। brother and sister, let us not think, oh, the voice of the majority or the voice of the people is the voice of God. इसलिए प्यारे भाई बहन, हम यह न समझे कि लोगों की आवाज परमेश्वर की आवाज है। If the 100 people say wrong is right, don't believe that. अगर सही लोग कहते हैं कि गलत सही है, तो आप उसमें विश्वास मत If the कीजिए। one person say or the two person say wrong is wrong only, you believe, you consider it, you search that whether it is true or not. अगर एक या दो व्यक्ति कहता है कि गलत गलत ही है, तो आप उसे जांच कर देखिए, आप समझिए और उसमें विश्वास कीजिए। In Acts chapter 10 verse 34 and 35 when we see, प्रेरितों की काम 10वां अध्याय का 34 और 35 it वचन is में written there, God is not a respecter of persons. वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। God is not respecter of persons. परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। But in this world we see, we will respect the person by seeing his personality, by seeing his caste, by seeing his status. लेकिन इस संसार में हम देखते हैं कि लोगों की ऊंचाई, उनका कद देखकर या उनका रीतियों को देखकर लोग उनका आदर करते हैं। If he is a rich, he is a high educated, well educated, or what is called beautiful, and so many other worldly, when we see some qualities among them, person will respect them. अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुंदर है, संसारिक तौर से उसमें कई गुण पाए जाते हैं, तो उनका आदर किया जाता But है। brother and sister, the word of God says, God is not respecter of persons. लेकिन प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। But to whom God will respect? लेकिन परमेश्वर किसका आदर करेगा? Do you want to know that? और क्या आप उसे जानना चाहते हो? Let's read 2 verses. हम ये 2 वचनों को पढ़े। Acts 10 verses 34 and 35. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय का 34 और 35 वचन। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वो उससे भाता है। Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा Here we हो। see God is no respecter of persons. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, But in every nation, वरन हर जाति में, but in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वो उससे भाता है। You may be hearing me while sitting under this shamayana or out of shamayana. Remember, God is not respecter of persons. आप इस शमयाना के भीतर रहकर या बाहर रहकर इस बात को सुनते होंगे, लेकिन आप जान लें कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का आदर नहीं But in करता। every nation, लेकिन हर जाति में, in every nation, he that feareth God, he will be accepted by God. हर जाति में जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर उससे भाता You है। may belong to any caste, creed and religion. आप चाहे किसी भी धर्म, किसी की मत के होंगे, But if you fear God, लेकिन अगर आप परमेश्वर से डरते you हैं, will be accepted by God. आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए God will जाएंगे। respect you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। And next thing what we see, he that worketh righteousness, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो धर्म के काम करते one हैं, who do the right works,
जो धर्म के काम करते हैं, right works. जो सही काम करते हैं, One who do the right works and fear God, God will respect him. जो सही काम करते हैं और परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर उनका आदर You करेगा। may be a great man, highly educated and a rich person and also having the status and people may respecting you. But in the same time, if you don't fear God and if you don't do right works, God will not accept you. आप एक महान व्यक्ति, एक धनी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लोग आपका आदर करते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं डरने से, परमेश्वर का धर्म के काम नहीं करने से, परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। Now the question arises. Some people's heart, अगर अभी जो है कई लोगों में ऐसे सवाल उठता I है, don't fear God. मैं परमेश्वर को नहीं I will डरता, not do any righteous works. मैं किसी धर्म के काम नहीं करता, My life is worse only. मेरा जीवन बहुत ही बुरा है। If I will come to this Jesus, will he accept me? अगर मैं इस यीशु के पास आऊं तो क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? Yes, he will accept you. हाँ, वो आपको स्वीकार करेगा। The day you decide to fear him, he will accept you. जिस दिन आप फैसला लेते हो कि आप उससे डरेंगे, उस दिन वो आपको स्वीकार करेगा। Read John chapter 6 verse 37. यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय का 37 वचन पढ़िए। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. If anyone will come to me, Jesus said, I will no wise cast him out. यीशु कहता है कि और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। Whatever your condition may be, dear ones, प्यारे लोगों, आपकी अवस्था चाहे कुछ भी हो, you may be committing sins, शायद आप पाप करते होंगे, whatever it may be. चाहे कुछ भी You हो, may be far away from God. आप परमेश्वर से दूर होंगे, You might have grieved God with many ways. आप परमेश्वर को कई तरह से शोक दिए होंगे, And because of that, you may be suffering also. उसके कारण आप दुख उठाते होंगे, And you may be thinking, who is there? Who is there who can help me? और आप सोचते होंगे कि मेरी सहायता करने के लिए कौन है। Here, God is speaking to you. यहाँ पर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। Your Creator God is speaking to you tonight. आपका सृजनहार परमेश्वर आज रात के वक्त आपसे बातें If कर रहा है। anyone will come to me, अगर कोई मेरे पास आएगा I will not cast him out. तो मैं उसे अपने से दूर नहीं I will करेगा, accept him. मैं उसे ग्रहण करेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Don't go after the public opinion. आप जो है सामाजिक अभिप्राय के पीछे न जाइए। Don't say all other committing sin, all other telling a lies, all other doing deceiving other. If I am doing, what is the harm? आप ये न कहना कि सभी लोग पाप करते हैं, सभी लोग दूसरों को धोखा देते हैं, तो मैं भी करने से क्या फर्क होगा। Don't go after the public opinion, dear ones. It is a great hindrance for you to know the truth and come to the truth. प्यारे लोगों, आप सामाजिक अभिप्राय के पीछे मत जाइए, वो आपके लिए रुकावट होगा। आप सच्चाई को जानकर सच्चाई का पीछा कीजिए। Yes, truth is this. One who fear God and do righteous works, God will accept him. सच्चाई यह है कि जो परमेश्वर से डरता है और जो धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार God करेगा। is not respecter of persons. परमेश्वर किसी व्यक्ति का आदर नहीं करता, But in every nation, लेकिन हर एक जाति में one who fears God and works righteousness, he is accepted with God. जो परमेश्वर से डरता और जो धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उससे बाता है। Second thing what we see about Zacchaeus, और जक्कई के बारे में दूसरी बात क्या देखते though हैं? this press crowd was a hindrance for him, but he overcame that. ये भीड़ उसके लिए एक रुकावट होने पर भी वो उसके ऊपर प्रबल हुआ। Second thing what we see, दूसरी बात क्या देखते he हैं? was pygmy, he was short-statured man. वो एक नाटा व्यक्ति था। What this speaks about? ये किससे दर्शाता What है? this pygmy or the short-statured person speaks about? ये नाटापन, ये नाटा कद किससे दिखाता है? We can take it as a sinful life. वो हम एक पापमय जीवन को दर्शा Dear सकते one, हैं। person who lives in sin, he has no boldness to look at God. और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की ओर देखने के लिए याद नहीं होता। Sin has made man so short or so insignificant that he lost his boldness to see God. पाप ने मनुष्य को इतना नाटा या फिर इतना छोटा बना दिया है कि वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। He has gone far off from God. वो परमेश्वर से बहुत ही दूर हो गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So dear one, sinful life will not help us to come closer to God. इसलिए प्यारे लोगों, पापमय जीवन आपको परमेश्वर के नजदीक आने के लिए मदद नहीं करेगा। Why people are committing sins nowadays? इन दिनों में लोग पाप क्यों करते हैं? They know the consequence also sin. The word of God says, wages of sin is death. वे पाप के परिणाम को जानते हैं। वे जानते हैं कि पाप का वेतन तो मृत्यु है। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But still we see
whether people are old in age, or middle age, or young age, all are committing sin. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोग, मध्यांतर वर्ष के लोग और जो जवान हैं वे सब पाप करते हैं। Why? What is the reason? क्यों? इसका कारण क्या है? Bible gives the answer for that. शास्त्र इसका भी उत्तर देता है। When we read Hebrews 11 chapter, जब इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, there we can see why people commit sin. वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं। Though they know the consequence of that also, वे पाप के परिणाम को जानने पर भी, basis of sin is death, वे जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, yet they are committing sin without any hesitation. लेकिन फिर भी हिचकिचाए बिना वे पाप करते हैं। Let's read Hebrew 11 chapter verse 25. इब्रानियों 11 अध्याय का 25 वचन। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Sin, why people commit sins? लोग पाप क्यों करते हैं? Answer is given in this verse. इसका उत्तर ये वचन में लिखा है। What is that? वो क्या है? Sin gives us seasonal joy. पाप जो है उनको थोड़े दिन का सुख या खुशी देती है। Sin, let it be any type of sin. वो पाप It gives seasonal joy to them. वो पाप चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो उनके जीवन में थोड़े समय का सुख या खुशी देती है। When people go for seeing cinema, जब लोग सिनेमा देखने जाते in हैं, that time they will get the joy. और वो समय में उनको खुशी मिलती है। And when they drink, जब वे पीते हैं, when they do some physical sin, जब वे कोई शारीरिक पाप करते हैं, they get little joy. उनको थोड़ा सा आनंद मिलता है। But after that, लेकिन उसके बाद they are regretting, oh, what we have done, that is wrong. वे ये समझते, पश्चाताप करते हैं कि हमने जो कुछ किया वो पाप था। So brothers and sisters, इसलिए भाई बहन, Zacchaeus was pygmy, he was short-sighted man, could not see God. जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, वो यीशु को नहीं देख पाया। That speaks about our sinful life. वो हमारी पापमय जीवन को दर्शाता Sin है। takes us away from God. पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। But who can bring us back to God? लेकिन कौन हमें परमेश्वर के पास ले आ सकता When we है? read Ephesians chapter 2, इफिसियों की पत्रिका 2 अध्याय, chapter 2 and verse 13. उसका 2 और 3 वचन पढ़ते वक्त, Chapter 2 verse 13. 2 अध्याय का 13वां वचन पढ़ते वक्त, Yes. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So we will read only one language, short of time. So here it is written, now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. और यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brother and sister, man who lives in sin and because of sins he was far away from God, God sent his son Jesus Christ into this world, and through his son Jesus who died for our sins on the Calvary cross, we can come closer to God. प्यारे लोगों, मनुष्य जो पाप में जीवन बिताता, उनके खातिर परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया और यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मर गया और उसके कारण हमें पापों से छुड़ाया। Jesus who was in heaven left all the heavenly glory and honor and praise, but he came into this sin-sodden world and he died for our sins. यीशु जो स्वर्ग में दिखाई दिया, वो अपने सारे स्वर्गीय महिमा और आदर को छोड़कर इस पाप भरे संसार में आया और हमारी पापों की खातिर मर गया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। 2 hindrances were before Zacchaeus. जक्कई के सामने 2 रुकावट है। One was crowd, public opinion. एक भीड़ या सामाजिक अभिप्राय था, And second was he was a pygmy. और दूसरा बात यह था कि वो छोटा कद का था। Perhaps before you also 2 hindrances may be in front of you to come closer to Jesus. शायद आपके सामने भी ये दोनों रुकावट होंगे जो आपको यीशु के पास आने से रोकते हैं। But Zacchaeus' desire was so paramount, so high into his heart that these 2 hindrances could not stop him. लेकिन जक्कई के मन का आग्रह इतना ज्यादा था कि दोनों रुकावट उसे रोक नहीं सका। There is a saying in English, अंग्रेजी में ऐसे कहावत है, where there is a will, there is a way. जहाँ पर एक आग्रह है वहाँ पर एक मार्ग भी होगा। Where there is a will, there is a way. जहाँ पर आग्रह है वहाँ पर मार्ग भी होगा। Now Zacchaeus wanted to see Jesus. अब जक्कई यीशु को देखना चाहता था, Desire was in him. उसमें ऐसे एक आग्रह दिखाई दिया। So though he faced problems also, इसलिए hindrances also, वो समस्या और रुकावट का सामना करने पर but भी desire was so paramount into his heart, उसके दिल का आग्रह इतना ज्यादा था, those hindrances could not stop him. वो रुकावट उससे रोक नहीं सके। Now see what he did.
अब देखिए उसने क्या किया। Luke chapter 19 and verse 4 it is written, लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 4 वचन में लिखा he है, ran before and climbed up into a tree वो आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, because he knew that Jesus had to pass this way. क्योंकि वो जानता था कि यीशु को उसी मार्ग से गुजरना है। So he ran, and the Bible says he climbed upon the tree. ये शास्त्र में लिखा है कि इसलिए वे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, And that is the way he could, from that tree, he could see Jesus. और उस पेड़ से वो यीशु को देख सका। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What this tree reminds us. ये पेड़ हमें किससे स्मरण कराता Now है? you please read this 1 Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन पढ़िए। Yes. वो 1 आप, Peter 2:24. पहला पत्रस 2 का 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। In Hindi it is written cross, but in English it is written tree. Read in English please. अंग्रेजी में पढ़िए। Who his own self bare our sins in his own body on the tree. On the tree. So in English it is written, he bare our sins upon his body on the tree. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वो पेड़ पर चढ़ गया। And in Hindi it is written, he took our sins upon his body on the cross. और ऐसा लिखा है कि वो हमारे पापों को लिए अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। Now to see Jesus, what way Zacchaeus took into his life? अभी यीशु को देखने के लिए जक्कई ने अपने जीवन में क्या किया? He climbed upon the tree. वो पेड़ पर चढ़ गया। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई now बहन, it become very clear, अभी बहुत स्पष्ट रीति से पता चलता if है, anyone want to see Jesus, अगर कोई भी यीशु को देखना if चाहते हैं, anyone want to see God, अगर कोई परमेश्वर को देखना चाहते हो, way is only one. एक ही मार्ग है, That is the tree. वो पेड़ है, That is the cross. वो सलीब है, Where Jesus took our sins upon his body on the cross so that through his death he may open the way for us or break the wall of partition and bring us back to God. इसलिए यीशु जो है अपनी देह पर पापों को उठाते हुए उस सलीब पर चढ़ गया, ताकि वो हमारे लिए एक मार्ग बनाए या फिर उस दीवार को ढा दे जो हमें परमेश्वर से दूर किया था। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jesus Christ already, he took all our sins. We may belong to any caste and creed and religion, as already I have told you. You need to come to that cross, then only you can go to God or see God if you want. यीशु मसीह उस सलीब पर हमारे सारे पापों को उठा लिया, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी जाति के होंगे, लेकिन आप उस सलीब के पास आइए तो स्वर्ग में जाने का मार्ग वही We है। are not here to reject any religion. We are not here come for this purpose. हम किसी धर्म को बैर करने के लिए या दूर करने के लिए, तुच्छ जानने के लिए But नहीं आए, dear one, we would like to tell you the truth. लेकिन हम केवल आपको सच्चाई बताना That's why चाहते Jesus हैं। said, "You shall know the truth, and truth shall make you free." इसलिए यीशु ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Zacchaeus went to the tree. That is a symbol of the cross where our Jesus died for our sins. जक्कई उस पेड़ पर चढ़ गया, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का सलीब का चिन्ह है। And through his death on the Calvary cross, Jesus Christ opened the new and living way for us to go to God. और कलवरी सलीब की मृत्यु के कारण यीशु हमारे लिए एक नया और जीवता मार्ग खोल दिया, ताकि हम परमेश्वर के समीप जा सकें। Now way is open for you. अभी हमारे लिए मार्ग खुला है। Broad way is open for you by Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए एक चौड़ा मार्ग खोल दिया You है। have no need to worry about anything. आपको किसी बात की चिंता करने की No need जरूरत to worry नहीं। about your sins which you have done in past. आपके भूतकाल में आप किए हुए किसी पापों के बारे में फिक्र मत Even the कीजिए। sin which you have done even today also. आज के दिन आपने जो पाप किए उसके बारे में फिक्र मत If you will कीजिए। come to Jesus, अगर आप यीशु के पास आते हो, how you are, आप कैसे हैं, whatever your condition may be, if you will come to Jesus, चाहे आपकी कौन सी भी अवस्था हो, आप यीशु के पास आज आ जाने से already He has opened the way for you. वो आपके लिए पहले से एक मार्ग खोल दिया है। Way to heaven He has already opened by His crucifixion death. उसके क्रूस की मृत्यु के कारण वो स्वर्ग की ओर आपके लिए एक मार्ग खोल दिया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Now let us come to the second part of that passage. अभी हम उस भाग के दूसरे भाग में आइए। Zacchaeus wanted to see Jesus. जक्कई यीशु को देखना चाहता था, He did 3 things in his life. वो अपने जीवन में 3 काम किया। And now see what Jesus is doing
by seeing his desire. अभी आप देखिए कि उसका आग्रह को देखकर यीशु उसके लिए क्या किया। Yes, dear one, if you have desire to see God, हाँ प्यारे लोगों, अगर आप परमेश्वर को देखने का आग्रह रखते if हैं, you want to come out from your sinful life, आप पापमय जीवन से बाहर आना if चाहते you want हैं, to come out from your problems and worries and cares, आप आपकी समस्या और चिंताओं से बाहर आना चाहते हैं, now listen what Jesus is telling. अभी देखिए कि यीशु क्या कह रहा है। What Jesus is telling, now listen. यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है, इसे सुनिए। Luke chapter 19 and verse 5. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 5वां वचन। Yes. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Dear one, especially Christians, those who are seated over here and also the believers, you might have read this verse several times. प्यारे लोगों, खास करके जो विश्वासी और मसीह लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस बात को आप कई बार शायद पढ़े होंगे। But have you observed how many things are mentioned there by Jesus? लेकिन यहाँ पर यीशु ने कितनी बातों को बताया, क्या आप इसे समझे हैं? 7 things. सात Seven things. सात बातों को In बताया। the 5th verse, 7 things Jesus told to Zacchaeus. 5वें वचन में यीशु जक्कई से 7 बातें कहता You है। might have read this verse several times. आप कई बार इस वचन को पढ़े होंगे। Perhaps many of us may have not gone in detail or deeply about that verse. शायद इस वचन के बारे में हम गहराई से नहीं सोचे होंगे। First thing what we see, पहले हम क्या देखते हैं, Jesus came to the place. यीशु उस जगह पहुंचा। What we understand by that? इससे क्या समझते हैं? Wherever people needed the help of Jesus, Jesus will be present there. जहाँ कई लोग यीशु की सहायता चाहते हैं, वहाँ पर यीशु मौजूद होगा। Oh, this is the beauty of our Jesus. ये हमारी यीशु की सुंदरता है। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, God is our refuge and strength. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और सहायता है। हाँ, शक्ति है। He is our refuge and strength. वो हमारा शरण स्थान, हमारी सहायता है। And He is the present help in the time of our need. वो हमारे संकट के समय में हमारा निजी सहायक है। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ So हो। here, what we read, first thing, Jesus came there where Zacchaeus was waiting for Him. यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ जक्कई खड़ा था, वहीं पर यीशु पहुंच गया। Likewise, you are also waiting here in the presence of God, and Jesus is among us in the spirit form. वैसे आप भी यहाँ परमेश्वर की हजूरी में हो और यीशु भी आत्मा के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। Jesus, who is God, He is walking among us. यीशु जो परमेश्वर है, वो हमारे बीच में चल We फिर रहा can है। only see Him with the eyes of faith. हम केवल विश्वास की आंखों से उसे देख सकते No हैं। one has seen God, but if we will have faith upon the word of God, we can see that God. कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो तो आप उसे देख सकोगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। First thing, Jesus came there. पहले यीशु वहाँ पर पहुंच गया। Now Jesus is standing side by you. अब यीशु आपके पास खड़ा है। He wanted to help you वो आपको सहायता करने के लिए because चाहता you है, want to see Him and you want to get help from Him. क्योंकि आप उसे देखना चाहते हो और आप उससे सहायता चाहते हो। Second thing, what we see there, दूसरा हम यहाँ पर क्या देखते हैं, He looked up. वो ऊपर की ओर देखा। The Jesus came there near the tree where Zacchaeus was. Then the second thing we see, Jesus looked up. यीशु उस पेड़ के पास आया जहाँ जक्कई था और वो ऊपर की ओर दृष्टि किया। Why Jesus looked up? यीशु ने ऊपर क्यों देखा? Needy person was there waiting for Him. क्योंकि वहाँ पर एक जरूरतमंद व्यक्ति उसके लिए बात जो रहा In the था। same way, Jesus is looking to you, dear one, those who are seated here. वैसे आज जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबकी ओर यीशु दृष्टि कर रहा He is है। looking your inner state. He is looking the inner thirst of your heart. वो आपकी अंदरूनी अवस्था, आपकी हृदय की अवस्था की ओर देख रहा है। Oh, that's why He's looking you. And now what He say? वो आपकी ओर देखकर क्या कह रहा है? First He looked. Second thing He looked. Then third thing we see, He saw Him. पहले वो उसकी ओर दृष्टि करके फिर उसे देखा। How He saw Him? उसने कैसे देखा? Oh, He was on the tree and hid Himself. वो जो उस पेड़ पर अपने आप को छिपा रहा था। See, Jesus saw Him now. No, you have no need to hide yourself. I have seen you. अभी यीशु आपको देखा है, इसलिए आपको छिपने की जरूरत नहीं है। यीशु ने आपको देख लिया। Brother and sister, we cannot hide ourselves from God. हे भाई बहन, हम परमेश्वर से अपने आप को नहीं छिपा We सकते। cannot hide ourselves from God. हम अपने आप को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। Whatever we are doing,
Whether good or bad, we cannot hide from God. हम चाहे जो कुछ करते हैं, भलाई या बुराई, हम उससे परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। Sometimes we may hide from human being, we may hide from our parents or from our children, but we cannot hide anything from God. कई बार हम इंसानों से, हमारे माता पिता, हमारे बच्चों से छिपाते होंगे, लेकिन किसी भी बात परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And the fourth thing what we see, चौथी बात क्या है? he said unto him. वो उससे कहा। Now God is speaking to him. आप परमेश्वर से बातें कर रहा है। God said unto him. परमेश्वर से बातें कर रहा Dear है। brother and sister, when you have desire to see God, प्यारे भाई बहन, जब हमें परमेश्वर को देखने का आग्रह है, God will not remain as a statue before you. परमेश्वर आपके सामने एक मूर्ति की नाई नहीं रहेगा। He will not remain as a statue and will not speak to you. No. वो आपके सामने एक मूर्ति के समान आपसे बातें न करते हुए नहीं रहेगा। Now he is speaking to Zacchaeus. वो अभी ज़कई से बातें कर रहा So है। our God is a living God. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। He is not a such God who is made with the hands of human being. वो मनुष्य के हाथों से बना हुआ परमेश्वर नहीं है। He is a creator God. वो सृजनहार परमेश्वर He है। has created the whole universe. वो पूरी ब्रह्मांड का सृष्टि He करता has है। created you and me. वो आपको और मुझे रचा Now है। he is speaking to Zacchaeus. अभी वो जगह से बातें कर Same रहा way he है। is speaking to you also. वो इस समय में वो आपसे भी बातें कर रहा है। He said unto him, वो उससे कहा, make haste. Make जल्दी haste. तू जल्दीबाजी कर। Here we see God told him, make haste. यहाँ पर परमेश्वर उससे कहता है कि तू झट उतर के आ। This is the fifth thing which Jesus told to make haste. ये जो है पांचवी बात है, यीशु उससे कहता है कि झट उतर आ। Sometime after knowing the truth, some people they will linger, they will delay, they will not make haste. कई बार सच्चाई को जानने के बावजूद लोग देरी करेंगे, वे जल्दी से नहीं करेंगे। They will say, I will think later. वे कहेंगे कि हम बाद में सोचेंगे। They know the truth, but they don't want to follow the truth. They postpone to follow the truth. वे सच्चाई को जानने पर भी उसका पीछा करना नहीं चाहते, उसमें देरी करते हैं। He made haste. वो झट उतर आया। And the next thing what we see there, और उसके बाद क्या देखते हैं? came down. वो उतर आया He है। come down. वो उतर आ गया। Because God told him, today I want to abide in thy house. क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Seventh thing we see here. यहाँ पर हम 7 बातों को देखते This हैं। is what, dear one, when you have desire to see God, when you have desire to see Jesus, who died for your sins on the Calvary cross, He will do these things. He will tell all these things to you. प्यारे लोगों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर देखना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ये 7 बातें आपसे भी कहेगा। He said, today I want to abide into your house. यीशु कहता है कि आज के दिन मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Not that house in which you are living. आप रहने वाले उस घर में नहीं। What is that house in which God wants to dwell? परमेश्वर वास करने के लिए चाहने वाला घर कौन सा है? That is our heart. वो हमारा हृदय है। That is our heart. वो हमारा हृदय है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। So brother and sister, our heart is the house of God to dwell. इसलिए भाई बहन, हमारा हृदय परमेश्वर का भवन होकर कैसे दिखाई देता है, ताकि वो हम में वास करे। Can you say, my house, my heart is empty for Jesus? क्या आप कह सकते हैं कि मेरा घर या मेरा हृदय यीशु के लिए खाली Is है? your heart is occupied by somebody? क्या आपका हृदय में और कोई बसा हुआ है? Is your heart is occupied by somebody? क्या आपके हृदय में और कोई वास Or करता है? can you say, Jesus, my heart is open for you, my heart is empty for you? या आप कह सकते हैं कि यीशु मेरा हृदय तुम्हारे लिए खाली है, तुम्हारे लिए तैयार है? Zacchaeus respond the call of Jesus. जक्कई जो है यीशु की पुकार की और उसने कहा, When Jesus called Zacchaeus, Zacchaeus, make haste and come down. जब जक्कई से यीशु ने कहा कि तू झट उतर के आ, Today I want to abide in your house. आज मुझे तेरे घर में वास करना He है। did not say, Jesus, I only wanted to see you, that I have seen, that is enough for me. वो ये नहीं कहा कि मैं केवल आपको देखना चाहता था, अब तुम्हें देख लिया है। Rather, he was so grateful to Jesus that he wanted to come to my house. Why I should delay? I will take him. वो इतना शुक्रगुजार था कि यीशु मेरे घर में जाना चाहता है, इसलिए वो बहुत झट उतर आया ताकि उसके घर में ले चले। When we see the life of Zacchaeus, जब हम जक्कई के जीवन को देखते he हैं, was a rich man, वो एक धनी व्यक्ति था, he was a high officer, वो बहुत अच्छे एक पद वाला व्यक्ति chief था, of the publicans, वो जो है चुंगी लेने वाला था, but at the same time he was a sinner, Bible says. लेकिन वो इस समय में वो एक पापी भी था। Brothers and sisters, भाई बहन, those who are hearing me, you may be rich. जो कोई मुझे सुनते हैं, शायद आप भी धनी होंगे, You may be holding a high post.
आपको एक अच्छा पद होगा, You may be a great man, आप एक महान व्यक्ति होगा, big officer. आप एक बहुत बड़े अफसर But the होंगे। question rises whether you got the salvation or not. लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको परमेश्वर का उद्धार है? One day all this status, honor, padvi, everything, riches, we have to leave in this world only, and we have to go and stand before God to give the account of our life. एक दिन हमें हमारे सारी धन, हमारी सारी संपत्ति, हमारे आदर, हमारी पदवी को छोड़कर हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, ताकि हमारे जीवन का हिसाब दे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Therefore make haste. इसलिए झट उतरा Respond the call of Jesus. और यीशु मसीह की पुकार की ओर आई। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Then we see he came down and took Jesus into his house. फिर हम देखते हैं कि वो उतर के आया और यीशु को अपने घर ले गया। He was coming with Jesus. वो यीशु के साथ आ रहा He था। came with Jesus and reached to his house. वो यीशु के साथ आकर उसके घर में प्रवेश You किया। know after that what he did? उसके बाद उसने क्या किया करके जानते हो? Let us see 19th chapter, Luke verse 8. लूका 19 अध्याय का 8वां वचन। When you come to Jesus, जब यीशु के पास आते हैं, or when you are willing to accept Jesus into your house, which is your heart, जब आप पूरे हृदय के साथ यीशु को अपने घर में स्वीकार करते हैं, what else you have to do? आपको क्या करना होगा? What else? Apart from that, what you have to do? उससे ज्यादा आपको क्या करना होगा? Read verse 8, please. 8वां वचन Luke पढ़िए। chapter 19, verse 8. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 8वां वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Here he made a confession. यहाँ पर वो इकरार करता है। First he wanted to see only Jesus. पहले वो केवल यीशु को देखना But चाहता when he था, saw the great love of Jesus concerning this wicked sinner, लेकिन जब वो उसके प्रति यीशु मसीह की महान प्रेम को देखा, when he saw that Jesus is loving him so much, जब उसने देखा कि यीशु उससे इतना ज्यादा प्रेम करता he है, wanted to come to my house, वो मेरे घर में आना चाहता so है, I must clean my life. इसलिए मैं अपने जीवन को शुद्ध करना I चाहिए। must clean my life. मैं अपने जीवन को शुद्ध करना I must चाहिए। tell everything to my Jesus. मैं अपनी सारी बात यीशु को बताना So चाहिए। here we see he made a confession. इसलिए यहाँ पर वो एक इकरार करता है। Dear brother and sister, प्यारे भाई बहन, that is the way to get the salvation. उद्धार पाने का मार्ग यही है। Without confessing, we cannot get the salvation. इकरार के बिना आप उद्धार नहीं पा And सकते। that confession also, not a great man of this world, but only before Jesus who can forgive our sins. और वो इकरार इस संसार के बड़े लोगों के सामने नहीं, लेकिन केवल यीशु के सामने, जो हमारे पापों को माफ कर सकता Yeah, है। who died for our sins, वो हमारे पापों के लिए मर गया, or who forgive our sins. जो हमारे पापों को माफ करता Let है। me tell you, no great men of this world died for our sins. मुझे ये बताने दे कि संसार का कोई भी महान व्यक्ति हमारे पापों के लिए नहीं But मरा, only this poor Jesus, about Jesus is told he was a poor, but nobody respected him. लेकिन यीशु के बारे में कहा गया है वो दीन है, कोई भी उससे आदर नहीं दिया। He only died for our sins. वही केवल हमारी पापों के लिए मर And गया, before him only you have to accept your sins, confess your sins. और केवल उसके सामने आप अपने पापों का अंगीकार कर सकते Now in हैं। the 8th verse we see the confession of Zacchaeus. अभी 8वें वचन में जक्कई के इकरार को देखते हैं। That means he did all these things which he is confessing before Jesus. वो यीशु के सामने इकरार किए हुए सभी पापों को किया है। Perhaps what he has confessed, you may have not done those sins, शायद उसने जो कुछ इकरार किया आप ऐसे पाप नहीं किए होंगे, but you may have other sins into your life. लेकिन आपके जीवन में शायद दूसरे पाप You may होंगे। be telling lies, आप झूठ बोलते होंगे, maybe having hatred and bitterness and anger into your heart, आपके जीवन में बैर या कड़वाहट या क्रोध होगा, and eyes full of lust, आपकी आंख अभिलाषा से भरी हुई होगी, and you want to enjoy in this world. आपको इस संसार का मौज लेना होगा, Pride will leave your heart. आपके हृदय में घमंड होगा। All these things are also sin in the sight of God. ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। So that also you shall have to confess before Jesus as Zacchaeus confessed. जैसे जक्कई ने इकरार किया, वैसे आपको इन सब पापों को परमेश्वर के सम्मुख में इकरार करना Book होगा। of Proverbs chapter 28 verse 13 it is written, he that covereth his sin shall not prosper. नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन में क्या है? जो अपने पापों को डांपता है वो सफल नहीं But होगा, one who confess and forsake, he shall have the mercy of God.
लेकिन जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की If जाएगी। you want to get the forgiveness of our sins, you have to confess your sin before Lord Jesus Christ. अगर आप पापों की क्षमा चाहते हो तो अपनी पापों को यीशु के सम्मुख में इकरार कीजिए। Now he did not think, Zacchaeus did not think, oh, I am a high officer and I am a rich also, people are respecting me. If I will tell, because more people were there also, if I will tell, what impression people will have about me? लेकिन यहाँ पर जक्कईस ये नहीं सोचा कि मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, लोग मेरा आदर करते हैं, मैं एक सरदार हूँ, अगर मैं ये सब बताने से इसका नतीजा क्या होगा, What people will think about me? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। But what he did? लेकिन उसने क्या किया, He confessed. वो इकरार किया। Whether people like me or despise me, I am not bothered about that. चाहे लोग मुझे पसंद करें या मुझे तुच्छ जाने, मुझे उसके बारे में कोई I चिंता want नहीं। to get the forgiveness of my sin, that's all. मुझे अपने पापों की माफी चाहिए। And now I come to know that who can forgive my sins? और अब मैं जान लिया है कि कौन मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear ones, once again I am reminding you and repeating it, that only if you want to get the forgiveness of your sin, you have to accept or confess before Lord Jesus Christ. Alone He can forgive you. प्यारे लोगों, और एक बार आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आपको पापों की क्षमा चाहिए तो आप केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने इकरार कीजिए तो वो आपको क्षमा देगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा So हो। when he confessed his sin before Jesus, जब उसने अपने पापों को यीशु के सम्मुख में इकरार किया, what Jesus told him? यीशु ने उससे क्या कहा, 9th verse. 9वां वचन, Yes. Luke 19:9. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 9वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। Come to this house, for so much as he also is son of Jesus Abraham. said unto Zacchaeus, this day is salvation come to this house in his life. तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है या उसके जीवन में उद्धार प्राप्त हुआ। So from this verse we can easily understand that only when our sins will be forgiven by Lord Jesus Christ, we are sure that we are saved people. We got the salvation. इसलिए हमें ये पता चलता है कि जब हमारी पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माफ किए जाते हैं तब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई बहन, if your sins are not forgiven by Lord Jesus Christ, अगर आपके पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा नहीं की गई है you cannot say that you are a saved person. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति You may give alms to the poor people. You may do so many good things as the people are doing in this world. In order to get the forgiveness of their sin, they are deceiving themselves. आप जो है गरीबों को दान देते होंगे या और कुछ काम करते होंगे जैसे इस दुनिया के लोग करते हैं, जिसके द्वारा वे पापों की क्षमा को प्राप्त करें और इसके कारण धोखा खाते होंगे। But remember, only Jesus Christ, who took our sins and died for our sin, He can only forgive your sin. आप स्मरण रखिए, केवल यीशु मसीह जो हमारे पापों को उठा लिया है वही केवल हमें पापों की क्षमा दे सकता है। That's why in John chapter 8 and verses 34 to 36 when we read, it is written, if Son will set you free, indeed you will be free. इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय का 34 से लेकर 36 तक हम पढ़ते हैं, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो सचमुच तुम स्वतंत्र हैं। If Son who is Jesus will set you free, indeed you will be set free. यदि पुत्र या यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई बहन, now what you have to do to get salvation? अभी उद्धार पाने के लिए आप क्या करना चाहिए? Salvation it is not an option, but it is a must. उद्धार जो है आपके लिए ऐसे आपके निर्णय की बात नहीं है, लेकिन आपको जरूरी है। It is not an option whether you like it or not. No, it is not. It is a must. ये ऐसी बात नहीं है जिससे आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए एक जरूरी है। If you want to go to heaven, you must be saved, and that's salvation through Jesus. आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आप उद्धार पाना चाहिए, वो भी यीशु मसीह के द्वारा। Read Romans chapter 10, रोमियो 10वां अध्याय verse 9 and 10. 9 और 10 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth
unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. We see Zacchaeus, he made a confession before Lord Jesus Christ. यह हम देखते हैं कि जक्कई यीशु के सामने एक इकरार करता Now है। hear what St. Paul says. यहाँ पर संत पौलुस क्या कह रहा If है? thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार and करे shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार And the पाएगा। 10th verse is written, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Whosoever believeth upon Lord Jesus Christ shall not be ashamed. जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। Today you may say, why I should believe this Jesus? आज आप कहते होंगे कि मुझे यीशु मसीह पर क्यों विश्वास I करना am है? also having my own religion. Why I should believe this Jesus? मेरे लिए भी अपना धर्म है, मैं यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करूं? But remember the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे स्मरण in कीजिए। the same chapter, Romans 10 and verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. क्योंकि रोमियो 10 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Are you saved or not? क्या आप उद्धार पाए हो या नहीं? Are you saved or not? क्या आप उद्धार पाए हो या नहीं? Have you ever sinned? क्या आपने कभी पाप किया है? Just once, एक बार भी हो। Or one sin. या एक पाप किए होंगे। Even if one sin, dear ones, it may stop you to go to heaven. आपका ये एक पाप आपको स्वर्ग की ओर जाने में आपको रोक देते होंगे। That's why what you have to do. इसलिए हमें क्या करना है? Accept your sin before Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का इकरार He कीजिए। is ready to forgive your sins. वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। Zacchaeus, he believed on Lord Jesus Christ. He confessed all his sins, and that moment only he got the salvation. जगह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो अपने पापों को इकरार किया और वही क्षण वो उद्धार पा लिया। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। What is your state today? आज आपकी अवस्था क्या है? Are you saved or not? क्या आप उद्धार पाए हो या नहीं? Don't postpone the day of salvation. आपके उद्धार का दिन में देरी मत The word कीजिए। of God says, if today you hear the voice of the Lord, don't harden your heart. प्रभु का वचन ये कहता है कि आज के दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनने से अपने हृदय को कठोर मत There कीजिए, is only one name who can save you. क्योंकि केवल एक ही नाम है जो आपको उद्धार दे And that सकता है name is Lord Jesus Christ. और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। That's why we have already read in Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. इसलिए रोमियो 10 का 13 में हमने पढ़ा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। And Acts 4 and 12 verse, it is written, there is no another name under the heaven and upon the earth whereby men must be saved. और And that name is Jesus. प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन में लिखे हैं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We will read one scripture more and we will conclude. और हम और एक वचन पढ़कर हम फिर समाप्त करेंगे। Psalm 103 and verse 3 it is written. भजन संहिता 103 का 3 में लिखा है, Please read that verse. पढ़िए। Psalm 103 and verse 3. भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Who forgiveth all their iniquities, who healeth all their diseases. Who forgive all your iniquity, all your sins, and heals all your sicknesses. वही तो तेरे सब अधर्म या पाप को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता Now है। hear what we read. अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? When our sins will be forgiven, जब हमारी पापों की क्षमा होगी God will heal us also. परमेश्वर हमें चंगाई भी करेगा। Is there anyone who is seated here with sickness? यहाँ पर कोई भी बीमारी के साथ बैठे हो क्या? Perhaps the reason may be your sin. शायद उसका कारण आपका पाप ही होगा। Here we have read Psalm 103 and verse 3. He forgive all your iniquities and He heals all your sicknesses. यहाँ पर भजन 103 का 3 में पढ़ा है, वो तेरे सभी अधर्म को क्षमा करता और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। All sins and all sicknesses. सभी अधर्म और सभी रोगी। Yes, whatever your sins may be, how many sins you have committed, He will forgive all your sins when you will come to this Jesus. चाहे आपके कितने भी पाप हो, जब आप इस यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। And whatever your sicknesses may be,
all sickness He heals, the word of God says. और चाहे आपकी कैसी भी बीमारी हो, वो आपकी सारी बीमारी का चंगाई करता है। Perhaps a doctor may forsake you, शायद वैद्य भी आपका हाथ छोड़ देते but हैं, this Jesus, He will not forsake you. लेकिन ये यीशु आपको नहीं त्यागेगा, Because He carried our sins and also our sicknesses upon His body of the cross. क्योंकि वो अपनी देह में हमारी पापों को और हमारी बीमारों को उठा लिया। Don't harden your heart. आप अपनी हृदय को कठोर मत कीजिए, Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए, Come to this Jesus. इस यीशु के पास If आइए। you will deny this Jesus tonight, अगर आप इस यीशु के पास आ जाते हो, you will be a great loser. अगर आप इस यीशु को त्याग देते हैं, तो आप बहुत ही बड़ा पराजित व्यक्ति You होगा। will be a great loser, dear ones. आप प्यारे लोगों, आप बहुत बड़े पराजित व्यक्ति But होंगे। if you will accept Jesus tonight, लेकिन अगर आप इस यीशु को स्वीकार करते you हैं, will be a winner. तो आप एक विजय प्राप्त किया God व्यक्ति will होगा। forgive your sins and He heals from all your sicknesses. प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करके आपके सारे रोगों को चंगाई And करेगा। Zacchaeus got the salvation. जैसे जक्कई को उद्धार मिला, Tonight salvation is for you. आज वो उद्धार आपके लिए है। Come to Jesus. यीशु के पास आइए, Give your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को दे Say, दीजिए। Jesus, my heart is open for you. बोलिए कि हे यीशु, मेरा हृदय तेरे लिए खुला I will है। not give my heart to anybody else. मैं और किसी को अपना हृदय नहीं दूंगा। I will not give my heart to do the will of devil. मैं शैतान की मर्जी करने के लिए अपना हृदय But I नहीं am दूंगा। giving, I am willing to give my heart to you and to only to do your will of God. लेकिन केवल तेरी मर्जी करने के लिए मैं अपना हृदय तुम्हें दूंगा। Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करें? God is speaking to us through His holy word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। Tonight is a night of salvation for you. आज की रात आपके लिए उद्धार की रात है। Accept your sin before Jesus. अपने पापों को यीशु के सामने अंगीकार कीजिए। If anyone seated here as a backslider, अगर यहाँ पर कोई भी पीछे हटा अवस्था में बैठा है, come back to the Lord. आप प्रभु के पास लौट आइए Invite Jesus once again into your backsliding heart. और एक बार आपके पीछे हटे दिल में यीशु को स्वीकार कीजिए। And He will come into your heart and He will revive you and bless you. वो आपके हृदय में आकर राज्य करेगा, आपको आशीष देगा। Tonight you have no need to go back as you have come. आज रात जैसे आप आए हो वैसे वापस लौटने If की you have जरूरत come नहीं। with your sins, leave your sins to Jesus and get salvation through Him. अगर आप पापों के साथ आए हो तो आप पापों को छोड़कर आप उद्धार पाइए। If you have come with sicknesses, leave your sicknesses with Jesus by faith and be healed. अगर आप बीमारी के साथ आए हो तो विश्वास के द्वारा यीशु के पास अपनी बीमारी छोड़कर चंगाई पाइए। As Zacchaeus wanted to see Jesus, जैसे जक्कई यीशु को देखना चाहा, that is the hope of the New Testament church also. वही नई नीम की कलीसिया की We आशा। know our Jesus coming very soon. हम जानते हैं कि हमारे यीशु जल्दी आता Dear है। servants of God and dear believers, प्रिय सेवकों और प्रिय विश्वासी, our hope is that we are going to meet Jesus and we will see Him face to face. हमारी आशा है कि हम यीशु से मुलाकात करेंगे और उसके चेहरे को Let देखेंगे। us put away all failures and shortcomings from our life. हमारी जीवन की सारी कमी घटिया, सारी पराजय को Let दूर us करें। confess it before God and reconcile with God once again, हम हमारे यीशु प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लें, so that we may be with the Lord forever and ever in eternity. ताकि हम युगानुयुग हमारे प्रभु के साथ रहें। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करे। गुनाहगारो ओ बीमारो, गुनाहगारो ओ बीमारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। हमारे पाप ओ बीमारी, हमारे पाप ओ बीमारी, उठाने आप आया है, उठाने आप आया है। गुनाहगारो अभी मारो, गुनाहगारो अभी मारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। हमारे पाप बीमारी, हमारे पाप बीमारी, उठाने आप आया है, उठाने आप आया है। गुनाहगारो अभी मारो, गुनाहगारो अभी मारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। गुनाहगारो अभी मारो, गुनाहगारो अभी मारो, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें बुलाया है। Praise
Lord, praise the 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 Lord. Please stand up for 5 minutes. You please stand up. 5 मिनट के लिए हम सब उठकर खड़े हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God spoken with you in various type and going on speaking through the word of God. परमेश्वर ने कई अनुभव के द्वारा प्रभु उसके वचन से हमसे बातें किया। Dear children of God, tonight God proclaimed the gospel of the salvation. आज रात को परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा हमसे मुलाकात किया। Tonight Lord told that God told that who is the Lord Jesus इस Christ. रात के समय परमेश्वर ने यीशु मसीह कौन है कहकर बात किया। Lord Jesus Christ is the savior of the world. यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। Lord Jesus Christ will take all your burdens. यीशु मसीह आपके सारे बोझों को निकाल देगा। He is the light of the world. वो इस जगत का ज्योति है। He remove all your darkness from your life. वो आपके जीवन से सारे अंधकार को दूर करेगा। Whatever darkness in your life, God going to dispel by the power of the light. आपके जीवन में जो कुछ अंधकार क्यों न हो, वो अपने ज्योति के द्वारा आपके अंधकार को दूर कर देगा। Lord Jesus Christ will save your soul. आपके प्राण को वो उद्धार करेगा। Or like a Zacchaeus, you need the desire to receive the salvation from God. उस जक्कैस के समान, जक्कैस के जैसे आप उद्धार को पाने के लिए आपके अंदर आग्रह होना Your चाहिए। desire will bring the salvation in your life. आपके आग्रह आपके जीवन में उद्धार पाने के लिए मौका होगा। Dear child of God, you may have the desire, but you have to come to Jesus. आपके अंदर आग्रह होगा कि आप यीशु के पास आना है। You have to climb the tree. आप उस पेड़ पर चढ़ना है। You have to see the Calvary cross. आप उस कैलवरी क्रूस को देखना है। Without the cross, there is no salvation for the mankind. उस क्रूस के बिना मानव जाति के लिए उद्धार नहीं है। This night you have to see the cross of the Lord Jesus आज Christ. रात को उस कैलवरी क्रूस को आप देखना है। On the cross He finished all your sins. उस कैलवरी क्रूस में हमारे सारे पाप को यीशु ने पूरा किया। Lord died on the cross to forgive all your sins. यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर मरा ताकि हमारे पाप से हमें This क्षमा night if you प्राप्त हो। confess your sin, there is a salvation power will touch your heart. यदि हम पापों को अंगीकार करें तो वो परमेश्वर हमें छूकर पाप से छुटकारा Once देगा। upon a time I was sitting like you and hear the word of God. एक समय में मैं भी आपके समान बैठकर वचन को सुन रहा था। Preacher told that if you won't accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, your sickness will not leave from you. प्रचार करने वाले ऐसे कहे, यदि आप यीशु मसीह को उद्धार करता होकर स्वीकार नहीं करने से बीमारी आपसे नहीं जाएगा। That day I accept the Lord Jesus Christ as my personal Savior. उस दिन मैं यीशु मसीह को मेरा उद्धार करता होकर स्वीकार किया। Tonight Lord told that there is a salvation by the Lord Jesus आज Christ. रात को यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उद्धार है करके परमेश्वर ने कहा। Why you need the salvation? क्यों हमें उद्धार चाहिए? Because there is a judgment and condemnation going to come upon this earth. क्योंकि हमारे इस जगत के ऊपर एक न्याय आने वाला है। Not only that, one day we are going to leave this earth also. एक दिन हम इस जगत को छोड़ने वाले हैं। Tonight if you die, where you are going to spend your eternity? इस रात को आप मरने से आपका नित्यता को आप कहाँ बिताओगे? Dear child of God, save your soul. आपके प्राण को हे परमेश्वर के बच्चे आप बचा लो। Lord Jesus Christ came in this world to save your soul from this world and take you to the heavenly places. यीशु ने जगत में आया कि आपको इस संसार से आपके प्राण को बचाकर उस स्वर्ग में ले जाए। Same time your body must be becoming holy by the power of God. उसी समय पर आपका यह शरीर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा पवित्र ठहरना चाहिए। Tonight all close your eyes. इस रात के समय आप सब अपने आंखों को God बंद करें। spoken through the Zacchaeus. प्रभु ने उस जक्कई के द्वारा हमसे बातें किया। He saw the Lord Jesus Christ. उस जक्कई ने यीशु मसीह को देखा। He accepted the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया। He taken the Lord Jesus Christ into his home. उसने यीशु को अपने घर पर लौटाया, लेकर गया। But tonight you have to take the Lord Jesus Christ in your heart. In your heart that is a home. इस रात के समय उस घर आपके हृदय में यीशु को स्वीकार करना है। If you accept the Lord Jesus Christ in your heart, there is a salvation in your life. यदि आप उस यीशु मसीह को आपके हृदय में ग्रहण करने से आपके लिए एक इस रात के समय एक उद्धार है। Now close your eyes and silently pray with the God. आप आंखों को बंद करते हुए आपके मन ही मन में आप यीशु से प्रार्थना Lord, कीजिए। like a Zacchaeus, I desire to come in my heart, O
God. यीशु जक्कई के समान मैं भी मेरे हृदय में यीशु तुझे स्वीकार करने के लिए चाहता Lord, हूँ। I know that you are the Savior of the world. यीशु मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तू ही इस जगत का You are the उद्धारकर्ता है। light of the world. इस जगत का ज्योति तू है, Who can deliver from all the darkness of the sin? जो इस जगत में सारे अंधकार से छुड़ा सकता है। Tonight, Lord, deliver me from all the darkness of my sin. हे प्रभु, इस रात के समय उस अंधकार के सारे पापों से मुझे छुटकारा My दे। Lord Jesus, come in my heart. हे यीशु, मेरे हृदय में तू आ। Open your mouth and pray. मुंह खोल कर आप प्रार्थना कीजिए। Today is your salvation day. इस रात के समय आज आपका उद्धार का दिन Today is है। your accepted day. आज प्रसन्नता का समय है। Tonight you accept the Lord Jesus Christ, you can see the glory of God. यदि आज इस रात के समय यीशु को आप ग्रहण करने से उसके महिमा को आप देख सकते हैं। Like Zacchaeus, you receive the Lord उस Jesus. जक्कई के समान यीशु को आप ग्रहण कीजिए। He will save your soul. वो आपके प्राण को बचाएगा। When you confess your sin, Lord going to touch you. यदि आप अपने पापों को कबूल करने से वो आपको छुएगा। Whosoever accepting the Lord Jesus Christ, जो कोई प्रभु को ग्रहण करने से they will confess their sins. वो अपने पापों को कबूल करेंगे। They will confess with their mouth. वो अपने मुंह खोलकर कबूल करेंगे। And they will confess that all their sins and accept the Lord. वो अपने पापों को कबूल करते हुए यीशु को ग्रहण करेंगे। Tonight, take the name of Jesus. There is a salvation for your soul. आज रात को यीशु के नाम को लो, आपके प्राण के लिए एक उद्धार है। Surrender your life. आपके जीवन को समर्पण Give कीजिए। your heart. आपके हृदय को यीशु को दीजिए। The word of God says, my son, give your heart. परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बेटे, मेरे तेरे हृदय को मुझे दे। God will save your soul and God will save your life. परमेश्वर आपका प्राण को, आपके जीवन को बचाएगा। Silently pray unto God. चुपचाप प्रभु के सुनी में आप प्रार्थना कीजिए। If you accept this word, यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने if से, you believe this word, यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करने से, silent you lift up your right hand. आप खामोशी से अपने दाहिनी ओर प्रभु स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। Silently lift up your right hand that God may see your right hand. परमेश्वर आपके हाथ को देखने दे। Lord, today I accepted you, God. हे प्रभु, इस समय मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। Lord Jesus, tonight I accept you. इस रात के समय प्रभु मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। I take your name, my Lord. मैं तेरे नाम को लेता हूँ प्रभु। Lord, save my soul. मेरे प्राण को बचा दे। I may not condemned, I may not be judged by this world. मैं इस वचन के द्वारा न्याय और दोषी नहीं ठहराना In ठहराना this world चाहिए। I should not be judged, O God. ये संसार में मैं न्याय नहीं ठहराना। I want to come to heaven only. मैं स्वर्ग में आने के लिए चाहता हूँ। Surrender to your children of God. परमेश्वर के बच्चे अपने आप को समर्पण कीजिए। Lift up your hands. आपके दैनिक हाथ को उठाइए। God will see and save your soul. परमेश्वर आपके हाथ को देखने दो, आपको बचाने दो। All the servants of God, pray for them who lift up their hands. सारे सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उनको परमेश्वर बचाए। Lord may save their soul. परमेश्वर के प्राण को बचाए। Tonight God may give the salvation experience. इस रात के समय परमेश्वर उद्धार का अनुभव देने दे। All the who lift up the hands, you pray unto God. जो कोई हाथ को उठाए आप प्रार्थना कीजिए। Lord, save my soul, O हे God. प्रभु मेरे प्राण को बचा दे। I may not condemn this in this world, O मैं God. संसार के साथ दोषी नहीं ठहराया I may जाना। not judge, O God, when you come back. तू जब आएगा मैं न्याय नहीं ठहराया जाना। Tonight, Lord, save my हे soul. प्रभु इस रात के समय मेरे प्राण को बचा दे। All pray for the dear children of God. सारे परमेश्वर के बच्चे आप प्रार्थना कीजिए। Lord, whoso lift up their hands, O God, save their soul, O God, save their lives, O God. Forgive their sins, O God. Save their soul, O God. Deliver from the bondage, O God. Amen. Dispel all the darkness from their life, O God. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Dear child of God, when you are praying, the peace is coming in your heart. ये परमेश्वर के बच्चे जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वो शांति आपके अंदर आता है। If you accept if you accept the Lord Jesus Christ as Zacchaeus, यदि आप उस ज़क्कई के समान यीशु मसीह को ग्रहण करने से, if you confess your sin, यदि आप अपने पापों को कबूल करने से, right now you can see the power of peace will come in your heart. इस समय उस शांति का सामर्थ्य आपके अंदर उतर रहा है। You will go back with the peace only. आप यहाँ से शांति के साथ लौट सकते हो। God will forgive your sins. परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus loves you tonight. God forgiven your sins and saved you also. इस रात के समय यीशु आपको प्रेम करता है, आपके पापों को क्षमा किया है। Go with peace. आप शांति के साथ लौट Go जाइए। with peace. शांति के साथ लौट जाइए। Lord granted the salvation in your life. आपके जीवन में प्रभु ने किया वो उद्धार को बताइए। Amen. Praise you, 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 praise you. Who are suffering with the sickness? जो कोई बीमारी से कष्ट उठाते हैं, Who are having the sickness from long time and is a chronic diseases? जो कोई नाइलाज बीमारी के साथ बहुत समय से बीमारी में जकड़े हुए हैं, Whatever sickness you may be in your life, आपके जीवन में जो कोई बीमारी क्यों ना हो, yes, child of God, believe the Lord Jesus हे Christ. परमेश्वर के बच्चे यीशु पर विश्वास रखिए। By His stripe you are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाए हैं। By His stripe you are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाए हैं। Lord Jesus Christ received the wounds in His body for your sickness only. यीशु ने हमारे बीमारियों के लिए अपने शरीर पर घायल हुआ। Believe only, you can see the power of God. यदि आप विश्वास करने से उसके सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। The power of God touch your body and heal your sickness. वो सामर्थ आपके शरीर को छूकर आपके बीमारी से छुड़ाएगा। Where is your sickness? Put your right hand. आपके बीमारी जहाँ कहीं है अपने दाहिने हाथ रखिए। Where is your sickness? Put your right hand. आपका बीमारी जहाँ कहीं है दाहिने हाथ वहाँ रखिए। You may be in this pandal, you may be outside, you may be in your house. आप इस पंडल के अंदर हो सकते हैं, आप बाहर हो सकते हैं, आप घर के भीतर हो सकते हैं। Wherever you may be, where your sickness, you put your right hand. आप जहाँ कहीं क्यों ना हो, आपके बीमारी जहाँ कहीं है, आप अपने शरीर के वहाँ अपने हाथ को रखिए। The power of the Lord Jesus will come and touch you. परमेश्वर का वो सामर्थ आकर आपको छूकर, In the Jesus of Nazareth, you will be healed. उस नस्री की यीशु के नाम से आप चंगाई पाओगे। Wherever you may be, put your right hand on your sickness. आपका बीमारी क्या कहाँ क्यों ना हो, आपके हाथ वहाँ रखिए। God going to touch you right now. यीशु आपको छुएगा अभी। God going to heal your sickness. परमेश्वर आपके बीमारी से आपको चंगाई देगा। All the servants of God, pray for them. सारे सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए। All the servants of catch your hands and pray them. सारे सेवक लोग अपने हाथ को पकड़ के उनके लिए Lord, प्रार्थना the power of कीजिए। God must touch them. परमेश्वर का सामर्थ उनको छूने दो। In the name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus of Nazareth. नस्री यीशु मसीह के नाम In से, the name of Jesus of Nazareth. नस्री यीशु मसीह के नाम से You are healed. परमेश्वर को चंगाई देने दे। Lord Jesus Christ touching you. यीशु मसीह आपको छूता है। Lord Jesus Christ touching you. यीशु मसीह आपको छूता है। He touching your body. यीशु मसीह आपके शरीर को छूता है। Where you have put your right hand and Lord touching your hand. His hand. जहाँ कहीं आपने अपने दाहिनी हाथ रखा, प्रभु ने वहाँ छुआ है। His wounded hand coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ आपको छू रहा है। His wounded hand coming upon you. परमेश्वर का घायल किया वो हाथ आपको छू रहा He है। touching your sickness. वो आपके बीमारी को छूता The है। sickness departing from your body. आपके शरीर के उस बीमारी आपको छोड़ रहा The है। sickness departing from your body. आपके वो बीमारी आपका शरीर से भाग रहा You है। are healed. परमेश्वर ने आपको चंगाई किया। In the name of Jesus of Nazareth, you are healed. नस्री यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओगे। Amen, 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 amen. चंगाई मिली है, हमें चंगाई
से, यीशु की कोड़े खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली। यीशु की कोड़े खाने से, यीशु की कोड़े खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली। यीशु की कोड़े खाने से, यीशु की कोड़े खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली। यीशु की कोड़े खाने से, यीशु की कोड़े खाने से, यीशु की कोड़े खाने से, यीशु की कोड़े खाने Don't doubt your Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को आप शक संदेह न करना। He is touching you and healing you. वो आपको छूकर आपको चंगाई देता है। In the name of Jesus, there is a power of the healing. यीशु मसीह के नाम में चंगाई का एक सामर्थ्य है। In the name of Jesus, there is a power of healing. यीशु मसीह के नाम में चंगाई का एक सामर्थ्य है। We command the demons, we command the sickness in the name of Jesus of Nazareth. हम उस शैतान को, वो बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। नाज़री यीशु मसीह के नाम में the sickness will depart from your body. नाज़री यीशु के नाम से वो बीमारी भागने दे। नाज़री, in the name of Jesus of Nazareth, the sickness depart from that body. नाज़री यीशु के नाम से वो शरीर से वो बीमारी जाने दे। Cry unto Lord. यीशु की ओर देखकर पुकारिए। Lord, cry unto Jesus. यीशु को देखकर पुकारिए। Lord, heal my sickness. यीशु मेरे बीमारी को चंगाई Lord, दे। heal my sickness. यीशु मेरे बीमारी से चंगाई दे। Heal my sickness, O Lord. यीशु मेरे बीमारी से चंगाई I दे। believe you have died for me. हे प्रभु, तूने मेरे लिए मरा, मैं विश्वास करता I हूँ। believe you have died for me. यीशु, तूने मुझे मेरे लिए मरा, मैं विश्वास When you करता हूँ। cry unto God, you see the power of God in your body. जब आप यीशु को देखकर पुकारोगे, उसके सामर्थ को आप देख सकते हो। Because of mercy of Jesus, He touching you and heal you. यीशु के उस दया के द्वारा आप उस बीमारी से चंगाई Lord पाओगे। Jesus, compassion toward the sick people. यीशु ने बीमारियों के ऊपर तरस खाया। Tonight, Lord Jesus, seeing you and compassion upon you. रात के समय यीशु आपको देखकर तरस खाता है। Oh Lord Jesus saw the Zacchaeus, tonight He is seeing you also. यीशु ने ज़क्कैया को देखा, इस रात के समय आपको देख रहा He है। knows your desire. यीशु आपके आग्रह को He जानता है। knows your need. यीशु आपके जरूरत को जानता He है। knows your problem. यीशु आपकी समस्याओं को जानता है। Lord delivering from all your problems. यीशु आपके सारे समस्याओं से छुटकारा देगा। Lord touch you. यीशु आपको छू रहा है। God touched you. यीशु ने आपको छुआ है। Amen, 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 amen. Lord touched so many people and healed them, therefore let's praise God. यीशु ने कईयों को छूकर चंगाई दिया। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God gave wonderful counsel and truth from heaven, therefore let's praise God. परमेश्वर ने स्वर्ग से एक अच्छे सलाह हमारे लिए दिया। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God sent the word of the salvation tonight and God touched your heart, therefore let's praise God. परमेश्वर ने उद्धार का वचन को देखकर हमें छुआ। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. God must give the grace to the servant of God, continue to all the meetings and share the word of God. परमेश्वर हर एक सेवकों को विशेष अनुग्रह देना चाहिए ताकि वे सारे मीटिंग में बने रहकर परमेश्वर के वचन को बांटे। Let's praise God. परमेश्वर हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. All the honor, glory and majesty and give the praises to Father, Son and Holy Ghost, Lord Jesus Christ and Holy Ghost, therefore let's praise God. सारे आदर मान महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम देते हुए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's pray.
प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु जी, तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये भोपाल शहर को प्यार करके इसे एक सम्मेलन हमारे लिए दिया, इसलिए धन्य कहते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, शाम का समय में तेरे सम्मुख में इकट्ठा होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्तुति का द्वारा और गीत का द्वारा तुझे धन्यवाद करने के लिए, आनंद तो तेरे सम्मुख में आनंद मनाने के लिए प्रभु मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जीवित गवाहों को खड़ा किया, जीवित वचन का द्वारा प्रभु इस शाम का समय हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप इस संसार में सेवकाई करने का समय प्रभु जकाई का विषय में प्रभु जी आपने किया हुआ सेवकाई का विषय में हम सुनने के लिए प्रभु मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जकाई भी प्रभु जी तुझे देखने के लिए आग्रह था, परंतु वो पापी व्यक्ति था परमेश्वर, आपको देख नहीं सक पाया प्रभु जी। वो पाप आपको देखने के लिए रुकावट था प्रभु जी, वो पाप को दूर करके आपको देखने के लिए प्रभु तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको देखने के लिए प्रभु जी वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारा सारे पापों को दूर करने के लिए आप कलवारी क्रॉस पर चढ़कर प्रभु जी हमारे सारे पापों को आप अपने ऊपर लेके कलवारी क्रॉस में लहू बहाया, जीवन दिया और प्रभु जी तीसरा दिन जी उठा। ये परमेश्वर यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, अभी भी उद्धार करने के लिए वो पवित्र लहू हमारा बीच में चल फिर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो लहू प्रभु जी अभी आज शाम का समय हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जकाई का घर में आप प्रवेश किया, जकाई आपको अपना घर में ले लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उस घर में लेने का समय आपने बताया ये घर में आज उद्धार आया करके। हाँ प्रभु जी, ये पंडल का अंदर में भी, पंडल का बाहर में भी, जहां जहां ये शब्द सुना, घर का अंदर में भी रहने वाला प्रभु जी आज आपको उद्धार करता करके स्वीकार करने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपना हृदय में यीशु को स्वीकार करके, यीशु को उद्धार करता करके स्वीकार करने के लिए तूने मदद किया। आज प्रभु जी जो जो उद्धार करता करके स्वीकार किया, उन सबको प्रभु जी आप पाप से क्षमा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अंधकार से छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीमारी से भी चंगाई किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, स्वर्गसियों से वचन को बेचकर हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन व्यक्त होने बिना 100 गुण फल लाने के लिए तेरा हाथ में अर्पण करते हैं प्रभु जी। आज शाम से रात को होने वाला मीटिंग को भी, रविवार शाम तक होने वाले सारे सभाओं को भी तेरा हाथ में अर्पण करते हैं परमेश्वर। सारे सभाओं में सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने के लिए कार्य कीजिए, तेरा हाथ में अर्पण करते हैं। यीशु का नाम से मांगते हो, सुनो, ग्रहण कर पिता। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर यीशु मसीह के आने तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।